बार इस गन्नौर के अंदर नेता नहीं बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा। अभी हमारे बीच में बस पहुंच चुके हैं आपके बेटे, आपके भाई देवेंद्र कादियान जी। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who backed it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. आपके बेटे, आपके भाई देवेंद्र कादियान जी आप सबके बीच में पहुंच चुके हैं। चला दे भैया लेडी।
रोक दो ये युवा साथियों से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा मातृ शक्ति है भाई, युवा साथी थोड़े पीछे हो जाए भाई, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। ये मातृ शक्ति माला डालने के लिए आगे आ रही हैं, तो ये युवा साथी थोड़े पीछे हो जाएं भाई, आप थोड़े पीछे हो जाएं। अभी थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें आप सबके। आवाज बढ़ा दे भाई, थोड़ी सी आवाज बढ़ा, इसकी पीछे तक नहीं जा रही, आवाज बढ़ा एक बार। ये युवा साथी थोड़ा सा पीछे हो जाएं भाई, आप सबके बेटे, आप सबके भाई, इस गनौर की आन बान शान, युवा दिलों की धड़कन भाई देवेंद्र कादम जी आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ, दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे, अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। ये आपकी तालियों की गूंज, ये आपका आशीर्वाद और ये उमड़ी भीड़ अब की बार दर्शाती है कि गनौर बदलेगा। गनौर के अंदर अब की बार भेदभाव की राजनीति समाप्त होगी और अब की बार इस गनौर की जनता ने ठान लिया, 36 बिरादरी ने ठान लिया, इन पितातुल्य बुजुर्गों ने, मातृ शक्ति युवा साथियों ने, सभी ने ठान लिया है कि अब की बार गनौर की तस्वीर बदलेगी और अब की बार इस गनौर के अंदर नेता नहीं बेटा चुना जाएगा, बेटा चुना जाएगा। ये युवा साथियों से निवेदन है भाई, ये युवा साथी मंच की व्यवस्था बना के रखें। ये ब्लैक शर्ट भाई, युवा साथी थोड़े से मंच की व्यवस्था बनाएं। बीच में कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मातृ शक्ति हैं, ये युवा साथी पीछे हो जाए भाई, ये पीछे खड़े हैं। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, आगे भीड़ ज्यादा है, थोड़े से पीछे हो जाए भाई, पीछे हो जाओ। ये हमारे सम्मानित कुछ खड़े हैं भाई, लास्ट में बोल रहा हूँ मैं, पीछे खड़े हैं, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ पीछे एक बार। ये मीडिया कर्मी भाई थोड़ा रास्ता दे, एक बार थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। ये युवा साथी मंच की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें भाई। ये रास्ता खाली कर दो, इधर से कर दो भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है। ये मंच के सामने की जगह अभी खाली कर दो और मंच पे भी व्यवस्था बनाए। ये युवा साथी जो मंच पे हैं, कुछ सम्मानित मंच पे बैठे हैं और युवा साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें भाई, थोड़ी सी व्यवस्था बनाए। युवा साथी थोड़ी सी व्यवस्था बनाए भाई, बनाए एक बार, व्यवस्था बनाए, थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। आप सबके बीच में आपके बेटे, आपके भाई देवेंद्र कादम जी आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, आप सबसे समर्थन करने की अपील करने के लिए आए हैं, तो सभी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें अपने बेटे, अपने भाई का। और ये युवा साथियों से मेरा फिर से अनुरोध है, ये मंच की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जब तक मंच पे जगह नहीं होगी तब तक देवेंद्र कादम जी भी अपने विचार हम सबके बीच में नहीं रख पाएंगे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये युवा साथी मंच की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें भाई, मंच की व्यवस्था बनाए भाई। ये युवा साथी ये युवा साथी भाई व्यवस्था बनाए एक बार, तभी हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। व्यवस्था बनाए भाई, व्यवस्था बनाए। आप सबका प्यार है अपने भाई के लिए, आप सबका आशीर्वाद है अपने बेटे के लिए, आप सबके अंदर जोश है, ये जोश है, आपका प्यार है। और ये जोश, ये प्यार ही सिद्ध करता है कि अब की बार इस गनौर के अंदर बेटा चुना जाएगा। ये जोश, ये आशीर्वाद ही बताता है कि आप दिल से अब की बार देवेंद्र कादम जी को चाहते हैं। एक बार व्यवस्था बना लो भाई, युवा साथी बना लो यार, बनाओ भाई, थोड़ी मंच की व्यवस्था बनाए ऐसे भाई, एक बार व्यवस्था बनाए भाई, व्यवस्था बनाओ थोड़ी सी। नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ, मंच से नीचे आ जाओ, एक बार मंच से नीचे आ जाओ। हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, सभी से रिक्वेस्ट है भाई, युवा साथियों से एक बार मंच से नीचे आ जाए, नीचे खड़े हो जाए। ये मीडिया कर्मियों से भी मेरा निवेदन है कि एक बार आप भी थोड़ा सा जगह बनाए। ये युवा साथी बना लो भाई, थोड़ी सी व्यवस्था बनाओ एक बार। मंच के सामने जो भी खड़े हैं थोड़ा सा साइड हो जाओ, और ये जो सामने सीढ़ी है ना भाई, इनको खाली कर दो, ये सीढ़ियां खाली कर दो भाई, कर दो एक बार भाई साहब, बाद में एक बार कर ले। भाई साहब एक बार थोड़ा सा ये युवा साथी सीढ़ी भी खाली कर दो भाई, ये बाद में करवा देंगे भाई साहब, नहीं आ रहे हैं जो, एक बार कर लो यार, इनको करो, थोड़ी सी व्यवस्थित करो। ये युवा साथियों से मेरा निवेदन है, आपके बेटे, आपके भाई सबसे मिलेंगे,
एक बार अपने विचार आपके बीच में रखेंगे, उसके बाद जिसको भी मिलना है सबसे मिलके जाएंगे। आपके बेटे, आपके भाई आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, सभी से मिलेंगे। थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। युवा साथी, इनका जोश है, इनका प्यार है अपने भाई के प्रति, हम मानते हैं। थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सीढ़ियां खाली कर दो भाई, ये सीढ़ी खाली कर दो एक बार। क्या करूं मैं, अब कहाँ जाऊं मैं? और ये बच्चे भी शोर बंद कर दें। अभी हमारे बीच में देवेंद्र कादन जी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। उससे पहले एक बार सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर एक बार नारे लगाएंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं पूरे जोश के साथ। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की। अभी एक बार अपने भाई, अपने बेटे को भी बता दीजिए कि एक गांव की 36 बिरादरी, ये मातर शक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग, ये युवा साथी सब अब की बार अपने बेटे, अपने भाई के साथ हैं। मैं आपको बोलूंगा देवेंद्र कादन, आप आगे बढ़ो। आपको दोनों हाथ उठाकर दिल से आवाज निकालनी है और बोलना है, हम आपके साथ हैं। दिल से आवाज निकलनी चाहिए और ये गूंज पूरे गनौर विधानसभा क्षेत्र में जानी चाहिए। देवेंद्र कादन, आप आगे बढ़ो और देश दिखाइए। देवेंद्र कादन, आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली आपके लिए हो जाए, जो अपने इतना भारी समर्थन, जो प्यार, जो आशीर्वाद अपने बेटे, अपने भाई को दिया, काबिले तारीफ है। अभी हमारे बीच में हमारे कुछ सम्मानित गांव के सम्मानित मौजूद हैं, जो पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं उन सम्मानितों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से मैं निवेदन करता हूं कि वो पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएं। ये जो पगड़ी हमारी हरियाणा की पवित्र भूमि में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है, और ये गांव की समस्त ग्राम वासियों की सरदारी ने जो जिम्मेवारी की पगड़ी अपने बेटे के सिर पे रखी है, ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और आपके गांव के विकास में और गनौर हलके के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जोरदार तालियां एक बार। ये पगड़ी का मान सम्मान, ये सरदारी की पगड़ी जो आपने अब की बार अपने बेटे के सिर पे रखी है, गांव के सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों ने जो ये पगड़ी अब की बार अपने बेटे के सिर पे रखी है, ये बेटा इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और आपके प्यार और इस आशीर्वाद के का ये बेटा आपका सदा आभारी रहेगा। और जो ऊर्जा, जो ताकत आपने अपने बेटे को दी है, ये ऊर्जा और ये ताकत आपकी सेवा में लगाई जाएगी। अभी हमारे बीच में हमारे गांव के महेंद्र जी हमारे सम्मानित, जो पगड़ी के साथ सम्मानित कर रहे हैं, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग सभी सम्मानित हैं। समस्त ग्रामवासी हमारे लिए सम्मानित हैं। सारी माता शक्ति हमारे लिए सम्मानित है। सभी युवा साथी हमारे लिए सम्मानित हैं। सभी ने जो पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाया है, सभी का दिल की गहराइयों से ये हार्दिक स्वागत, हम अभिनंदन करते हैं। जो आपने इतना प्यार, आशीर्वाद अपने बेटे को दिया, काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी हमारे बीच में रघुवीर सिंह जी हमारे सम्मानित हमारे बीच में मौजूद हैं, जो 11,000 की माला के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं रघुवीर जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए। और महेंद्र जी हमारे सम्मानित हमारे बीच में मौजूद हैं, जो 21,000 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। रघुवीर सिंह जी और महेंद्र सिंह जी दोनों से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए। और ये युवा साथी भाई सीढ़ी खाली कर दो, हो सकता है कोई हमारे सम्मानित आए मंच पे तो उनको रास्ता मिल जाए। रघुवीर सिंह जी 11,000 की माला के साथ उन्होंने देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाया। जोरदार तालियां एक बार सभी। महेंद्र जी ने 21,000 की माला के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया। हम रघुवीर जी का, महेंद्र जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं, जो आपने इतना मान सम्मान प्यार अपने बेटे को दिखाया। ये बेटा सदा आपका आभारी रहेगा और आपकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बड़ी माला का स्वागत
महेंद्र जी 21,000 की माला के साथ इन्होंने अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया। हम महेंद्र जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी सम्मानितों का, सारी इस मातृ शक्ति का, जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने बेटे से मिलने का, उनको आशीर्वाद देने के लिए आप बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, वो बेटा आपके बीच में आ चुका है आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। राजपाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। 11,000 की माला के साथ उन्होंने देवेंद्र कादयान जी का मान सम्मान बढ़ाया। हम राजपाल जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी ने जो इतना मान सम्मान, जो प्यार अपने बेटे को दिया, काबिल तारीफ है ये मान सम्मान। सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं, अपने भाई का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि बेटा या भाई को जो ऊर्जा ताकत मिलती है आपके प्यार से, आपके समर्थन से, आपके आशीर्वाद से मिलती है। और यही ऊर्जा, यही ताकत आपकी सेवा में लगाता है आपका बेटा, आपका भाई, और इस गन्नौर के विकास में लगाता है। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में ताकत लगाता है, बच्चों का हौसला बढ़ाता है, गरीब कन्याओं की शादी में मदद करने में ये ताकत लगाता है, गरीबों के घर बनवाने में ताकत लगाता है, 36 बिरादरी का मान सम्मान करने में ताकत लगाता है। यही ताकत इस समाज सेवी के लिए सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ऊर्जा है, सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद। सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ मान सम्मान बढ़ाएं। बड़ी माला के साथ, फूलों की बड़ी माला के साथ समस्त पांची जटान ग्रामवासी, पिता तुल्य बुजुर्ग और ये हमारे युवा साथी बड़ी माला के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अभी हमारे बीच में डॉक्टर मनोज जी मौजूद हैं, उनके भी कुछ अपने मन के विचार हैं, कुछ भाव हैं। डॉक्टर मनोज जी प्रिंसिपल हैं जैन गर्ल्स कॉलेज गन्नौर के, उनके भी अपने विचार हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे विचार हम सबके बीच में रखें। डॉक्टर मनोज जी। आप सभी को नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। भाई मजा आ गया आज पांची जटान में ये भाव देखकर, ये प्यार देखकर। अभी 2-3 दिन पहले गन्नौर में एक रैली हुई थी। 2-3 दिन पहले गन्नौर में एक रैली हुई थी, उसमें बस इतनी ही तादाद थी जितनी आज एक गांव भर में मिल गई है। मैं सैल्यूट करता हूं इस पांची जटान को। ये बड़ी माला से ग्राम सभी युवा साथियों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने जो बड़ी माला के साथ मान सम्मान दिया, सभी का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ सभी का हौसला बढ़ाएं। अभी सभी युवा साथियों से मैं अनुरोध करता हूं बड़ी मंच की व्यवस्था बनाएं, समय ज्यादा हो गया। सभी बहुत लंबे समय से अपने भाई, अपने बेटे के विचार सुनने के उत्सुक हैं। सभी युवा साथी एक बार मंच पर व्यवस्था बनाएं। कोई भी युवा साथी मंच पे ना हो भाई, ये सम्मानित है मंच पे हमारे, ये मंच सम्मानितों के लिए, पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए होता है। तो एक बार थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। डॉक्टर मनोज जी। भाई एक बार सभी बैठ जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, हवा आने दें। ये माताएं बहनें काफी देर से इंतजार कर रही हैं। सुनो माओ, सुनो बहनों, संघर्ष का समय है, अभी और तपना पड़ेगा। संघर्ष का समय है, अभी और तपना पड़ेगा। मैं बता रहा था 2 दिन पहले गन्नौर में एक रैली हुई, उस रैली में इससे ज्यादा तादाद में लोग नहीं थे। एक बार पीछे मुड़ के तो देखो सभी, एक बार मुड़ के तो देखो। इतनी बड़ी भारी तादाद में आप सभी देवेंद्र भाई का समर्थन करने, उसे प्यार देने आए हैं। आपको दिल से धन्यवाद। मेरे जैसा एक शिक्षाविद आज इस मंच पे खड़ा है तो केवल इसी वजह से कि ये भाई देवेंद्र कादयान जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा है, और मुझे गर्व है कि मैं देवेंद्र कादयान का समर्थक हूँ। हाँ, मुझे गर्व है, मैं देवेंद्र कादयान का समर्थक हूँ। आप भी अपने दोनों हाथ उठाकर देवेंद्र कादयान के लिए समर्थन प्रदर्शित करें। अच्छा, आप लोगों के दिल की बात कई दिन पहले मैंने की। कई दिन पहले सपने में भगवान कृष्ण आए, सपने में भगवान कृष्ण मेरे आए
और मैंने आप सभी की तरफ से विचार रखा, बात की। मैंने कहा, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, एक बार इस कलयुग में आके तो देख, एक बार इस कलयुग में आके तो देख, हमारा गन्नौर सतयुग जैसा होने जा रहा है। भले मानस, एक बार आके तो देख। तेरे को गोकुल में माँ बहनों का बहुत प्यार मिला, सबने तेरे को दिल से छाती से लगाया। अरे माँ बहनों का क्या प्यार होता है, एक बार इस पांची जटान में आके तो देख। हे कृष्ण, एक बार इस कलयुग में आके तो देख। तेरे राज में सुदामा तरस गया तेरे से मिलने के लिए, तेरे राज में सुदामा तरस गया तेरे से मिलने के लिए। आज ऐसी नौबत नहीं है, आज तेरा बेटा देवेंद्र का दन खुद सबसे मिलने आता है। एक बार आके तो देख। अरे भले मानस, एक बार इस गन्नौर में आके तो देख। बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं, माँ बहनों की सेवा कैसे होती है, गन्नौर के विकास की रफ्तार कैसे होने वाली है, लोकप्रियता क्या होती है। एक बार इस गन्नौर में और इस एक पांची जटान में आके तो देख। मैं फिर से आप सभी से आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में देवेंद्र भाई को राजनीतिक ताकत दे दो, उनकी कलम में ताकत दे दो, आप सभी एमएलए होंगे। इस पांची जटान का हर बच्चा, हर माँ बहन, हर नौजवान सब एमएलए होंगे, सबके एमएलए जितनी पावर होगी। अगर आप अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं, तो दिल से एक बार मेरे साथ बोले, देवेंद्र का दान, देवेंद्र का दान। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी जो ये प्यार मान सम्मान आप दिखा रहे हैं, आपने बहुत दिल से अपने भाई, अपने बेटे को प्यार मान सम्मान दिया है। ये युवा साथी थोड़ा सा भाई व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। समय भाई साहब, ये युवा साथी भाई एक बार कोने से ना इस पे थोड़ा सा ये सम्मानित बैठे हैं। हमारे मंच सम्मानितों के लिए होता है, मंच हमारे गांव की सरदारी के लिए होता है। ये युवा साथी भाई, ये सरदारी बैठी है गांव की। हमारे बीच में रामफल सैनी जी से मैं निवेदन करता हूं, अगर वो मौजूद हैं तो मंच पे आए। रामफल सैनी जी, ये युवा साथियों से भी मैं निवेदन करता हूं, थोड़ी सी व्यवस्था बनाओ। हमारे गांव की सरदारी, ये गांव की चौधरी, ये पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए मंच होता है, वो आप सबके सामने बैठे हैं। तो युवा साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखें। रामफल सैनी जी अगर हमारे बीच में मौजूद है तो एक बार वो मंच पे आए। एक मिनट सर, कुछ खड़ा था सर, आपसे मैं निवेदन करता हूं, अभी समय सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं देवेंद्र कादम जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार हम सब के बीच में रखें, क्योंकि सभी बेसब्री के साथ अपने बेटे, अपने भाई के विचार सुनने के उत्सुक हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे, अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। देवेंद्र कादम जी, एक बार जयकारा लगाएंगे सारे मिलके। मैं बोलूंगा बाबा बबूतनाथ की और आपने बोलनी है जय जय बाबा बबूतनाथ की। चढ़ा कर दिया भाई पहले झटके में चंडीगढ़। एक और ट्राई लेते हैं। जय बाबा बबूतनाथ की जय हो। और अब इस मातृ शक्ति के लिए बोलनी है। मैं बोलूंगा मातृ शक्ति की जय, मातृ शक्ति की जय। हमारे बूढ़ा की बोल दो, बुजुर्गों की जय। पानी मान गया। सबसे पहले इस मातृ शक्ति को, हमारी माताओं बहनों को सर झुका कर मेरा नमन, नमस्कार। ना गर्मी की परवाह, ना पछुए की परवाह और ना बारिश की परवाह, इनको सिर्फ परवाह है अपने बेटे की, अपने भाई की। ऐसी हमारी मातृशक्ति। और मेरे
युवा साथी जो वहां बाबा जी के पास बाबा जी है, ये रे बाबा जी लखोण का कोने है, बाबा जी का बुआ है, बाबा जी में शक्ति है। ऐसे मेरे युवा साथी जिन्होंने आज कंधे पे बिठाकर ये एहसास कराया, किसान का बेटा, गरीब किसान का बेटा भी एमएलए बन सकता है। ऐसे मेरे नौजवान मेरे भाइयों ने मुझे ऊर्जा दी, ताकत दी, एहसास दिलाया कि किसान का बेटा और किसान भी धरती पे ही रहता है। मेरे पितातल बुजुर्गों, प्यारे प्यारे बच्चों, दोबारा से सम्मानित मंच का मेरे समक्ष बैठा जो ये हुजूम है, और मैं समझता हूं आज का जो ये कार्यक्रम है हमारे पांची गांव के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। चाहे इस गांव में मुख्यमंत्री भी आए, मंत्री भी आए, लेकिन ऐसे चेहरों की चमक, इन माताओं की चमक नहीं देखी। एक हमारे ताऊ ने कहा, 99 ताऊ का है, ताऊ ने कहा कि तू नेता नहीं बेटा है। जय हो। अपनी बात को थोड़े समय में पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप सबने मदद करनी है। जहां जहां बच्चे बैठे हैं, हमारे बच्चे, उनको थोड़ा सा याद करना है ताकि मेरी बात आप तक पहुंच सके। इन बच्चों की मदद कर। देखिए, आज इस पांची जटान की पवित्र मिट्टी में, इस भूमि में, बाबा भूतनाथ की इस पवित्र भूमि ने आज जो इस बेटे को आशीर्वाद दिया है, जो सिर पे जिम्मेवारी की ये पगड़ी रखी है, इन माताओं ने जो सिर पे हाथ रखा है, इस आशीर्वाद को जीवन भर याद रखो। मंच से आपने ये जो टीवी चल रहा है, एलईडी टीवी, और एक जो युवा साथी जो मंच का संचालन कर रहा है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आपके समक्ष रखी, बहुत सारी चीजें आपने टीवी में देखी, लेकिन मैं कहता हूं ये पांची गांव है, ना यहां टीवी की जरूरत है और ना ही कोई मंच से किसी चीज के बखान की जरूरत है। ये बेटे को, भाई को पिछले 8.5 साल से जान, ऐसे बेटे को जिसने गरीब आदमी को, दलित परिवार को, नरम व्यक्ति को ये एहसास कराया है कि उनका भी कोई रखवाला है, उनका भी बेटा है, भाई है। ऐसा बेटा आपके बीच में 8.5 साल से। नेता लोग कितने आए और कितने चले गए, कितने आए और कितने चले गए, लेकिन एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा भाई, एक ऐसा बेटा जिसने बिना चुनाव लड़े, बिना कोई एमएलए, बिना कोई मंत्री बने आपकी सेवा की। लोग तो आते हैं, चुनाव का जब सीजन होता है, अपना रंग रूप चेहरा बदल कर इन हमारे गरीब भाइयों में, 80 वर्ग के भाइयों में जाते हैं और बड़े बड़े भाषण में 36 बिरादरी का ये करूंगा, 36 बिरादरी का वो करूंगा। मेरी माता बहनों और युवा साथियों, विशेष तौर पर जो हमारे भाई दानक समाज से आते हैं, जो रविदास समाज से आते हैं, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं,
वो बहरूपिया फिर घूम रहा है आपके बीच में, चेहरा बदल कर प्लाटों की बारिश कर रहा है, आपके बीच में आएगा, आपको बेवकूफ बनाएगा, बोलता है मेरे को बना दो और प्लॉटों की बारिश कर दूंगा, थारे को भी प्लाट, उसको भी प्लाट, उसको भी प्लाट। लालच में नहीं जाना। 10 साल थोड़े नहीं होते, 10 साल उसको मौका दिया था। ये वही असली चेहरा है जिसने इस पांची गांव में मात्र 1 परिवार, 2 परिवार, ज्यादा से ज्यादा 3 परिवार, इन्हीं परिवारों को अपना अड्डा बनाया। उन्हीं के घर में नौकरी, उन्हीं के घर में आना जाना, उन्हीं के घर में खाना, और गरीब आदमी का तो पानी भी नहीं पिया आज तक। यदि पानी पिया हो तो हाथ उठा के बता दो। हमारे भाई बैठे हैं यहाँ, सारे दलित समाज से हैं, बैकवर्ड समाज से हैं, उसने किसी भी हमारे एससी भाई का, बैकवर्ड भाई का पानी भी नहीं पिया। इसलिए आज जो ये प्रोग्राम रखा है, आज आपको फैसला करना है, आने वाली 5 तारीख को उस बहरूपिये को फिर से मौका दोगे या एक ऐसे बेटे को मौका दोगे जिसने गरीब किसान के घर में जन्म लिया, गरीबी की पीड़ा को महसूस किया, फुटपाथ पे बैठ के सब्जी बेची, छोटी दुकान चलाई, दूसरी दुकान चलाई, ढाबा चलाया, ऐसा नौजवान जिसने बेरोजगारी की पीड़ा को खुद में महसूस किया, एक गरीब आदमी की पीड़ा को महसूस किया। फैसला लेना है उस चाहे में फैसला लेना है कि जो चेहरा आपके बीच में 10 साल से आपके बीच में, और आपके बेटे के 8.5 साल वो मंत्री बन गया, एमएलए हो गया, बड़े पद पे रहा, लेकिन आपके भाई ने, आपके बेटे ने बिना चुनाव लड़े आपके बीच में रहा और लोगों की मदद की। हमारे सामने बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। आइए, ये हमारे भाई ने थोड़ी दवाई रखी है, थोड़ी दूर ले जाओ, पंजाब देखिए। इसका बिजली की समस्या है, इसकी बिजली की समस्या उतरवा देंगे, बिजली की कंप्लेंट है, वो बिजली की समस्या तार देंगे, इसकी तार देंगे बिजली की समस्या, ले जाओ इसमें। माता रोज आ जाए इसकी, लेकिन एक काम की बात बताया उसने, दोबारा भाई काम करा, वो काम की बात बताई, लेकिन काम की गए दोनों काम कर रहा था। मैंने आपको कहा आपको फैसला लेना है। एक तरफ वो नेता है जिसके पिताजी भी कई बार मंत्री, एमपी, बड़े बड़े पद पे रहे, और एक तरफ वो आपका बेटा भाई है जिसने आज तक कोई मेमोरी का भी चुनाव नहीं लड़ा। माता बहनों को फैसला लेना है, क्या गरीब के घर में, क्या गरीब किसान के घर में वो कोख है जहां से एमएलए जन्म ले सकता है, इस बात का फैसला करना है। क्या आप भी अपनी कोख से एक गरीब बेटे को एमएलए बना सकते हो, पैदा कर सकते हो, या मंत्री के घर में जन्म लेना पड़ेगा, इस बात का फैसला करना है। हमारे स्टेज पर वहां पीछे हमारे काका, ताऊ, दादा सारे बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई बीएसटी का कार्यालय होता था, बीएसटी में आप लोग जाते थे, कुछ हमारे बुजुर्ग अपनी आंखों से देखते थे, वो नेता अपनी उम्र से 20 साल 30 साल ज्यादा उम्र के हमारे बुजुर्गों से, दादाओं से, ताऊओं से पैर दबवाता था। यदि मैं झूठ बोला तो मना कर दो, पैर दबाता था। ऐसा नेता दोबारा से वोट मांगने आया है जिसने बुजुर्गों से पैर दबाए। उसके पास 2 ही तरीके थे काम कराने के, या तो हमारे
पिताजी हमारे दादाजी उसके पैर दबाए, या फिर भाई नौकरी पे खड़ी बांधो और छोड़ के नौकरी पक्की करो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब जो ये सरकार है, आज जो सरकार है, देश का जो मिजाज है, प्रदेश का जो मिजाज है, उस सरकार में गरीब घर के बच्चे को, चाहे वो आखिरी लाइन में बैठा हो, चाहे उसके घर में खाने का भी जुगाड़ ना हो, लेकिन यदि वो पढ़ाई में होशियार है तो उसको नौकरी अपने आप मिलती है। उसके घर की घंटी अपने आप बजती है। ना उसको नेताओं की जरूरत है, ना उसको पैसे की पोटली की जरूरत है। यदि वो पढ़ाई में होशियार है, यदि उसमें काबिलियत है, तो हमारी जो सरकार है उसने ऐसे घरों में दिए जलाए हैं जिनके पास ना पैसे थे ना सिफारिश थी। और उनके टाइम पे, उस नेता के टाइम पे पैसों की, नौकरियों की बोली लगती थी। या तो भाई उसके पैर दबाओ, या अपने पैसे इकट्ठे करो, रिश्तेदारों में कर्जा उठाओ, ये बेचो वो बेचो। इसलिए आपको फैसला करना है, वही समय दोबारा दोहराना है कि आपकी बात अपने भाई और बेटे को मौका देना, इस बात का फैसला करना है। देखिए यहां पे बहुत सारे हमारे किसान भाई, हमारे काका ताऊ दादा भाई नौजवान बहुत सारे बैठे हैं, और ये बात बहुत जरूरी सुनने की है और समझने की है। जिस नेता का मैंने जिक्र किया, आजकल उसने हमारे बुजुर्गों को, हमारे किसान भाइयों को बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका ढूंढ के लेके आया है। वो आता है, मंच पे भाषण देता है, बोलता है, चौधरी साहब अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपना सीएम ले आओ, अपनी चौधर ले आओ। अब लोगों को बेवकूफ बनाता है। चौधर की आड़ में वो बोल रहा है, पिछली बार तो मेरा इलाज कर दिया था, अब की बार दोबारा मुझे मौका दे दो। उसका किसी चौधर से मतलब नहीं है। उससे पूछना कि भाई तू गला फाड़ फाड़ के बोल रहा कि ये चौधर है, मेरा नेता यो, मेरा नेता यो। जिस नेता का तू बार बार नाम ले रहा है, वही नेता 5 साल पहले इस सोनीपत लोकसभा में एमपी का इलेक्शन लड़ने आया था। 5 साल पहले जिस नेता को वो कहता है मेरा नेता थारी चौधरी, जब वो चुनाव लड़ने आया था, यही आदमी है जिसने उसको हरवाया था, जिसने उसकी गोभी को। इसलिए यदि नहीं हरवाया हो तो एक बार को हाथ उठाने में देर पाया, हरवाया था। तो इसे जालसाजी वाली सियासत को समझना है। वही नेता और वही हराने वाला, उसी को टिकट है। कौन सा चक्कर है? इस चक्कर को और इस चक्कर बी को 5 तारीख को अपने उंगली से, अपने अंगूठे से तोड़ देना, वरना जिस नेता को अपना नेता बता रहा है उसका भी नुकसान करेगा, उसका भी नुकसान करेगा। जो जिस नेता के नाम पे वोट मांगता है, जिसके साथ उसने गद्दारी करी, जिसके साथ उसने उसको धोखा दिया, किस बात का उस नेता का नाम कौन सी चौधरी कुमार पांची में आएगा तो भाषण देगा कि वह चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी, अपना नाम नहीं लेता। तो सबसे एमएलए बना दो और मेरा वोट डाल दो, सीधी मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात करे। मुख्यमंत्री की कुर्सी से घाट बात नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये हमारे बोलने वाले, हमारे दादा कुर्सी के लालच में बहका के उस नेता का नाम लेके तेरी दुकान को जमाएंगे, तेरे को देखना बंद कर देंगे। लेकिन ये हमारे ताऊ उनसे पूछेंगे, भाई सुनने की बात है, आगे समझ में चौधरी की सारी चीजें, लेकिन तू की जा रहा था भाई 5 साल पहले, इस बात का उससे जवाब लेना है। और जैसा भाषण है वो पार्ची में देगा,
और जब शहर में जाएगा, शहर का भाषण इससे अलग। शहर में आपको बता देता हूं कौन सा भाषण देगा। मंडी में बैठकर, बाजार में बैठकर, वहां जाकर बोलता है, लाला जी, सेठ जी, जरा सोच समझ के वोट डालना, कहीं गुंडों का राज ना आ जाए। शहर में जाकर आपके बेटे को गुंडा बताता है, किसान के बेटे को गुंडा बताता है। शहर में जाकर जिस भाई ने, आपके बेटे ने 8.5 साल तक कोई सुई की नोक के बराबर भी निशान नहीं, सिर्फ लोगों की सेवा की है, सेवा की है, सेवा की है, उसको गुंडा बताता। क्यों गुंडा बताता है? क्योंकि उसका सीजन आया है, उसको वोट चाहिए। वहां हमारे व्यापारी भाइयों को डराता है, कहता है कि भाई ये ठाडे हैं, ये गुंडे हैं। क्या किसान के घर में जन्म लेने का मतलब गुंडा कहलाना है? यदि मैं गुंडा हूं तो फिर आप सब गुंडे हो। सब किसानी से जुड़े हैं। यदि यहां आकर पांची में तो बोलता है कि भाई चौधर ले आओ, और आपने के छोड़े नोड़े जाकर गुंडा बताओ। यदि भाषण में उसका फर्क समझना हो तो जिस दिन भगवानपुर में आए या हमारी वो जो सांदर है गुजरों वाली, उसमें आए तो भाषण समझ लेना। छोटा बड़ा भाषण तो पांची खातर स्पेशल है, ताकि हमारे उड़ा ले बस। इसलिए बुजुर्गों, हमारी मातृशक्ति इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये जो चुनाव है, ये बेटे के लिए है, आपके भाई के लिए है, और ऐसे बेटे के लिए जो आप जैसे घर से निकल कर अपनी मेहनत से, अपने पसीने से यहां इस मंच तक का सफर तय किया है, जैसे आपके वहां से निकल के। और एक बात बोलना चाहता हूं, मुझे पता है आज जो ये हिंदू है, ये जो दृश्य है, ये जो भव्य कार्यक्रम है, इसकी फोटो, इसकी वीडियो जब उसके पास जाएंगी तो उसकी नींद उड़ जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी। क्योंकि ये वही पांची गांव है, यही पांची गांव है जिस गांव के साथ इसने क्या किया था। ये बात याद है, बिल्कुल है, याद रखनी जरूरी है, खोल के बताने की जरूरत नहीं है। ये सबसे हमारा शांत गांव होता था, भाईचारा था, सब कुछ था। एक यही वो शख्स है जिसने सब कुछ खराब किया, इस बात को भी भूलना नहीं है। और यही काम हमारे गांव में, जो मेरे गांव में, वहां पर भी, और एक तीसरा गांव है। इन बातों को भी याद रखना, इस आदमी की क्या भूमिका थी, क्या रोल था, भूल मत जाना, इस चीज को भी याद रखना है। लास्ट में सिर्फ 2 मिनट में ये कहना चाहता हूं, आपके बेटे को गिराने के लिए, उसको चुनाव में हराने के लिए ये सारे नेता, नए पुराने अगले पिछले, सारे हाथों में हाथ डालेंगे। उसको, आपके बेटे को गिराने की कोशिश करेंगे। टाइम से पहले मजबूत हो जाना। आपके बीच में लोग आएंगे खुशर खुशर वाले, क्योंकि उनकी सेना है वो जो आप लोगों को बेवकूफ बनाती है, जैसे मंडी में जाकर मैंने अभी बताया। इसलिए जो आदमी आपको गलत रास्ते पे गलत बात बताए, उसको मौके पे जवाब देना है, और अपने अपने बुद्ध की जिम्मेवारी लेनी। सबने अपने अपने बुद्ध की जिम्मेवारी लेनी है, और चारों तरफ निगाहें रखकर आपको जैसे छोटे बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं, उसको ध्यान रखते हैं, ऐसे अपने बच्चे के चुनाव का ध्यान रखना है। अपना कोई अनुभव नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारी आत्मा में, हमारे मन में भाव है आप सबके लिए अच्छा काम करने के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, इन नौजवानों के लिए अच्छे भाव लेके आए हैं। जो आज तक
किसी ने नहीं किया, वो आपका भाई आपका बेटा करके दिखाएगा, वो करके दिखाएगा। एमएलए चुनता है 60 महीने के लिए, 5 साल के लिए। आपसे वादा करता हूं 60 महीने नहीं, पहले 3 महीने में आपके भाई आपके बेटे का काम बोलेगा। पहले 3 महीने, पहले 3 महीने का मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी। यदि आपके मुंह से ये नहीं निकलवा दिया हाँ ये नौजवान था, इसकी नई सोच थी, इसने करके दिखाया, पहले 3 महीने में काम करके दिखाऊंगा। आखिरी लाइन सिर्फ एक ही आपको बोलना चाहता हूं, आपका बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा, और इन माताओं से और हमारे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से जन्म लेने का अधिकार सबको है। मेरे को जन्म लेना है, मुझे कोख में मत मार देना, मुझे जन्म लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक छोटी सी बात इस नौजवान ने कान में बताई और बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। कई हमारे नए साथी जो जुड़ना चाहते हैं, नए परिवार जो देवेंद्र भाई से जुड़ना चाहते हैं, उनके दिमाग में एक सवाल चलता है, एक दुविधा है कि भाई छोरा बढ़िया है, ये भाई बढ़िया, लेकिन यार इसकी के में जुड़ते जाओ पर मारेगा उनका, फलाने का छोरा, उसका छोरा, पढ़ने पढ़ने में उसका छोरा, धड़का में उसका छोरा, बल में उसका छोरा। भाई उसके घने खास है, कदे हम जुड़ जावे और कि तो हमारी बुझ ना हुए और कदे हम लोग लाइन में पीछे खड़ी करते। भाई खुले मन से 36 बिरादरी खड़ी है, हमारे चाचा ताऊ दादा सारे बैठे हैं। इस पांची गांव से सैकड़ों की तादाद में लगभग 300 लोग, 300 साथी, 300 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आपके बेटे भाई को व्रत पे देख रखा है। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं, जो पहली बार आता है उसका भी आत्मा से काम करता हूं। ये जो पुराने नेताओं का काम था कि भाई अपने ठिकाने में फोन करो, भाई बताइए किस ये हमारा है कि नहीं है, का काम करो ना करो, मेरी किताब में ऐसा कोई पन्ना नहीं है। आप सीधा जुड़ो। जो भाई महीने में 3 चक्कर मार दे, और भाई कई हमारे काका ताऊ से हैं जो अपने काम में, को किसानी में बिजी है, को जमींदारी में बिजी है, को अपने दुकानदारी में, को नौकरी में। मेरे को बहुत ऐसे आदमी मिलते हैं कि भाई देख मेरे रोज रोज की हाजिरी उसकी बात नहीं, हम तेरे लिए 10 आदमी हम जिक्र करें, तेरे साथ जुड़े हुए हैं, कदे तू 900 चौड़े गन्नो नमस्ते कराओगे। ऐसे बहुत संख्या में सम्मानित है। इस बात का आप फर्क मत समझना कि जो रोज आने वाला आदमी और 1 साल में आने वाले आदमी में कोई फर्क मिलेगा, इस बात का फर्क मत समझना। मेरे को जिस है उनसे पूछना, वो पहले मसूरी आया करती है साबुन की, लते साबुन की मसूरी आया करती है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक साबुन की मसूरी आया करती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जिन्होंने 8.5 साल में भाई से वास्ता पड़ा है, एक बार उनसे पूछ लेना कैसा भाई है, उनसे जरूर पूछ लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई एक जानकारी मिली थी शाम को, एक बार सभी सम्मानितों से निवेदन है, एक हमारा जवान भाई एक्सपायर हुआ बीमारी की वजह से, सुरेश है, उसके लिए 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस दुख की घड़ी से उभरने के लिए शक्ति दे, ताकत दे। सबको मिलके बिना शोर किए 1 मिनट का मौन धारण करना है।
शांति शांति शांति। एक बार बाबा जी बोलना चाह रहे थे, कितने बाबा जी आ जाओ आ जाओ लोग क्या करो बाबा जी यारे तो ट्रेनिंग ली जाए और मन ने कौन सा बोलो बाबा सिद्ध भूतनाथ जी महाराज की, बोलो सिद्ध बाबा नौमीनाथ जी महाराज की। सारे भाई नागरा मने ही साहब अपना हो रहा है, देखो इनको बाबा देखो यो भाई है कि अंदर से सब डाले हैं इसमें। तो एक छोटी सी बात बताऊंगा, अपने डेरे पे चिनाई चल रही है, सभी को बेरा होगा। तो इसने आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद जो ओल बना है उसके लिए जो भी लगेगा वो देवेंद्र करेगा। बोलो बाबा और भाई देखो, मैं राजनीति तक नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, वोट उसको देना जो धर्म से जुड़ा हो, जो गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करे उसी को वोट देना। और देवेंद्र इस बात से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाबा जी आपने तो लटका दिया शके बोला सिर पे, इन्हें तो कमर में पूरी थापी दे रखी है। देखो एक बाबा जी नई बात बताता हूँ, मैंने अपना भाषण खत्म कर दिया। देखो कोई भी माता बहन कोई बच्चा हमारा काका तो हिल नहीं रहा अपनी जगह से, ये आशीर्वाद है, ये इन सबका आशीर्वाद है, बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद है जो इतनी देर रात डालो के टाइम से बैठी है, बढ़िया टाइम पे बैठी है, लेकिन कोई भी हमारी माँ बहन हो जाए उठी हो तो बताओ। ये समझ भाई मैंने सोची कदर बिजली बज रही बात कर रहा है, जो लोग है 10 बजे ढोल बाज जाएंगे, लाडू बांट देंगे लोग है। धन्यवाद। भूतनाथ जी ने तो भूतनाथ जी को देखो, अबे भी आऊंगा कराऊंगा कराऊंगा। चाचा तेरी ये तो गाड़ी तेरी ये माई 5 दिन की छोरी हुई है भाई, चल मैं अभी छोड़ रही हूं, ये विकास करेगा आप उसका सहयोग करोगे, हाँ या ना? बोलो बाबा भूतनाथ की, बाबा नौमीनाथ की। धन्यवाद।